नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। दिस विल बी कंसिडर्ड एज टाइप सी, जहां पे ग्रुप होगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज टाइप सी वेयर इट इज ग्रुप। लेट अस सी, देखा जाए। इन एन एग्जामिनेशन A got 20% more marks than B. B got 25% less marks than C, and C got 10% more marks than D. If D got 300 marks out of 500, find the marks of A and B. चलिए কি বলা হয়েছে বন্ধু, লেখা যাক। In an examination, A got 20% marks more than B. More than B. B got 25% marks less than C, and C got 10% marks more than D. मतलब C किस पे डिपेंड कर रहा है? D पर। B किस पे डिपेंड कर रहा है? C पर। और A किस पे डिपेंड कर रहा है? B पे। আমি আগেও পড়িয়েছি। मीन्स A is depending upon B, B is depending upon C, C is depending upon D। ठीक है, आप इसको आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। So if D got 300, चलिए दोस्तों, अगर D को 300 मिला है, so C got 10% more, यानी ये कितना होगा? 110/100। दिस इज द मार्क्स ऑफ C, ये C का मार्क्स होगा। एंड ये टोटल C के मार्क्स से B is getting 25% लेस। और मैंने आपको बताया था दिस टोटल मार्क्स ऑफ B is considered as 100%। इस 100% में से पेन चेंज करके लिखता हूं, इस 100% में से B has got 25% मार्क्स लेस दिस, so this become 75/100। तो ये मार्क्स किसने का हो गया? B का। ठीक है, मैं आपके लिए इसलिए ब्रैकेट दे के लिख रहा हूँ, এই জন্য লিখছি তোমরা বুঝতে পারো। This is the total marks of B which will be considered as 100%, and A is getting, pen change, and A is getting 20% marks more, so it become 120/100। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। D getting 300, उससे 10% ज्यादा, so it become 100/10। इससे 25% लेस है, so this becomes 75/100। और इससे 20% मार्क्स ज्यादा है, so this become 120/100। now so this can be written as 120/100 into 75/100 into 110/100 into 300। so let us solve it। what we are getting from here? 0 0 cancel, 0 0 cancel, this 0 cancel, this 0 cancel, 3, this become 4, so 4 से काट दिया 3, so we are getting 27 into 11, so this become 297। so the marks of A is how much? so the marks of A is how much? 297। ठीक, आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इट इंडिविजुअली ऑल्सो। 30 25 तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, सो डू इट इन अ परसेंटेज सो दैट टाइम बचेगा, यानी टाइमটা সেভ হবে। so the percentage of A, so A has got 297 out of how much? 500 into 100%। so let us solve it। this gone, this gone, 5 से अगर हम काट दें, so this become, we will cut it with 5, what we are getting? 5 5 is 25, 47, 5 9 is 47.2, so this become 49.4%। any doubts friends? कोई डाउट नहीं किसी को, बहुत इजीली क्लियर है। अब इस पे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सम टाइम D का देकर A के पूछता है, और सम टाइम A का देकर D का पूछता है। so let us see the another question of type C। I in an examination the total marks is 500। ठीक है, A got 10% less marks than B। let us do it। A got 10% less marks than B। ठीक है, B got 25% marks more than C। C got 20% marks less than D। ठीक है, now if A got, the value of A is given how much? that is equal to 360। so the value of A is given how much? 360। so we can consider this as X। so C got 20% less, so this become 80/100। so D got 25% more, so this become 125/100।
So this is the marks of B, and A got 10% less, so this become 90 by 100, and this total is equal to how much we can write? कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 360. कौन तो लिखते पारे 360? Let us solve it. 90 से डायरेक्ट उड़ाया 4, 25 5 जा, this become 4, 4 से काटा 20, so 20 से काटा 5, and 5 थी के 5 कह लो. So the value of x is equal to how much? That is equal to 400. So the marks obtained by D is how much? That is equal to 400. यानी कितने के बराबर है? 400 के बराबर है. कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. বুঝতে পারছো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, একদম এই সব জিনিস আমরা পড়েছি. In which direction it is flowing? We will go from lower to the higher. कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रहा है. Now moving to the next part. देखा जाए नेक्स्ट पार्ट में क्या है. आइए. Now based on Venn diagram, ठीक, यानी हम किस पे बात कर रहे हैं? वेन डायग्राम पर बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे. इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे. द टाइप ए विल बी ऑफ बेस्ड ऑन टू थिंग्स. ये सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये गेम हो सकता है, एंड एनीथिंग. ठीक है, अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए. बेस्ड ऑन टू थिंग्स, टाइप ए में लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. अब इस तरीके से समझिए, आप लोग जितने लोग बैठे हुए देखें, যতজন এখানে বসে আছো, আমি বললাম বন্ধুগণ, यानी क्या कहा कि मैंने मैथ का टेस्ट लिया और रीजनिंग का टेस्ट लिया. व्हाट आई हैव सेड? आई हैव टेकन द टेस्ट ऑफ मैथ एंड रीजनिंग बोथ. ठीक, तो मैंने कहा कि दोस्तों मैथ में m% लोग पास है और रीजनिंग में r% लोग पास है. मैथ्स में m% लोग पास है और रीजनिंग में r% लोग पास हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा जाना चाहिए. इफ आई विल से इन मैथ्स m% स्टूडेंट पास, तो इससे दो बातें समझ में आएंगी. कई स्टूडेंट होंगे, अनेक स्टूडेंट होवे जेरा सुदू और सुदू मैथ्स से पास होवे, यानी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो केवल और केवल मैथ्स में पास होंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ और रीजनिंग दोनों में ही पास होंगे. एंड बाय एडिंग दिस टू परसेंटेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग, दो सब्जेक्ट पे कि मैथ और रीजनिंग मैंने दोनों का टेस्ट लिया और मैंने कहा कि मैथ्स में m% पास है, तो इससे दो बातें आएंगी. इसमें कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास होंगे और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैथ और रीजनिंग दोनों में ही पास होंगे. उसी तरीके से अब रीजनिंग की बात की जाए तो वी विल गेट द सेम डेटा. इफ आई से r% स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, तो यहां से दो बातें होंगी. कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास होंगे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास होंगे, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स में पास होंगे. यानी अब अगर मैं गौर से देखूं तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं वेन डायग्राम से, इफ आई रिप्रेजेंट इट बाय डायग्राम, जो कि आप पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस में, जीटा तुमरा पढ़वे अंकोते, दिस कैन बी रिटन इन दिस वे. दिस सर्कल रिप्रेजेंट मैथ का टोटल परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, एंड दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग रीजनिंग का टोटल परसेंटेज. ठीक, तो हमने क्या कहा? ये जो है ये कॉमन पार्ट है, दिस इज बोथ पार्ट, यानी जो दोनों में पास हैं वो कितने हैं? मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही है. अगर ये मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही है, दिस इज द केस ऑफ बोथ केस, तो आप मुझे एक बताओ दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन किसका होगा? देन यू विल से স্যার এখানে তো শুধু ম্যাথ से যারা পাস করেছে ওইটাই হবে স্যার. তো আমি কখন বললাম না হবে না? দেখে নাও, मैथ्स का परसेंटेज मतलब पास्ड इन मैथ परसेंटेज एंड मैथ रीजनिंग बोथ है. मैथ के परसेंटेज को ध्यान से देखो, मैथ्स में पास है ओनली और दोनों में ही पास है. सिमिलरली इफ आई विल से सर ये पोर्शन किसका पोर्शन है, तो वी विल से ओनली रीजनिंग परसेंटेज. सो वी विल गेट व्हाट? ओनली रीजनिंग परसेंटेज. एक बात बता दो, जब हम वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं दोस्तों, खूब ভালো করে বুঝে নাও, বোঝার চেষ্টা করো, दिस बोथ केस वुड बी सेम. अब ये इसका मतलब क्या है सर? सेम मानेटा कि যদি ম্যাথ से पास परसेंटेज থাকে,
যদি ম্যাথে পাস পার্সেন্টেজ থাকে, রিজনিং এ পাস পার্সেন্টেज থাকে, यानी मैथ्स का पास परसेंटेज है, रीजनिंग का पास परसेंटेज है, बोथ केस विल आल्सो बी सेम, वो पास परसेंटेज ही होना चाहिए, यानी पास 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 होगा या फिर फेल 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 होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि एक मैथ में पास है, रीजनिंग में पास है, बोथ केस में क्या दे दिया, फेल दे दिया, देन वी कैन नॉट एबल टू डू द डायग्राम। हमारा तीनों जोन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हुआ। वी विल नॉट गो विद द सेट थ्योरी, हम सेट थ्योरी से नहीं जाएंगे, वी विल डू इन दिस वे बाय यूजिंग वेन डायग्राम, जो कि इजी पड़ता है करना। ठीक है, बहुत सारी चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग वेन डायग्राम, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सेट थ्योरी, बट राइट नाउ वी विल डू बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। यानी ये लॉजिक क्लियर है। अब हम आते हैं सवालों पे। चलो सवालों की धज्जियां उड़ाई जाए, देखा जाए क्या है। सुन, से in an examination 42% student failed in Hindi, सही है। 52% student failed in English. Let us draw the Venn diagram first. हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है। This is हिंदी, ये हिंदी। हिंदी में कितने फेल हैं? 42% फेल्ड। ठीक है भैया, 42% फेल्ड, क्या बात है सर। एंड इन इंग्लिश কত? 52% फेल, क्या बात है सर। So this portion will be considered as हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। तो अब मुझे ये बताइए सर, अगर हिंदी प्लस इंग्लिश में जो टोटल फेल्ड इन बोथ, यानी फेल्ड in both, failed, now we can do the Venn diagram. So 17% are those who failed in हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए सर, ओनली हिंदी में कितना होगा? तो सर ओनली हिंदीते কত হবে হিন্দি পার্সেন্ট স্যার? 42% ছিল, ওর মধ্যে থেকে স্যার 17% চলে গেল স্যার, 25% ওরা হবে যারা শুধু আর শুধু হিন্দিতে ফেল হয়েছে। এনি ডাউটস? নো ডাউট স্যার। अब सर ओनली इंग्लिश कितना होगा सर? सो सर 52% था, जिसमें से 17% दोनों में है सर, दैट मींस 35% आर दोज हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु फेल्ड ओनली इन हिंदी, हाउ मच? सो दिस आंसर विल बी 25%। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश में कितना? सो दिस विल बी 35%। The next question they have asked, passed in both subject। तो यार अगर एक सब्जेक्ट में दोस्तों বন্ধুগণ যদি একটা সাবজেক্টে ফেল আছে, দুটো সাবজেক্টে ফেল আছে, তো টোটাल फेल परसेंटेज কত? सो टोटल फेल परसेंटेज कितना होगा दोस्तों? बोलो सर 25% हिंदी में सर, 35% अंग्रेजीते सर यानी इंग्लिश में सर, एंड 17% इन बोथ सर। टोटल फेलियर যেটা হচ্ছে that is equal to 77%। যদি স্যার 77% ফেল হয় at least in one more than one subject, মানে দুটোও ফেল হচ্ছে একটাও ফেল হচ্ছে, তো এর ঠিক উল্টো পাসড ইন কি হবে স্যার? both, that is 100% minus 77%। so our answer will be what? that is equal to 23%। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा दोस्तों? 23% के बराबर आएगा। खाओ के बुझते कौन असुविधा नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। कैन बी मूव टू द नेक्स्ट। मजा आ रहा है, जिगजैग भी लग रहा है बात। चलिए आसो बंधुगण, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दवा है। इन एन एग्जामिनेशन 55% स्टूडेंट पास्ड। चलिए भैया पास्ड इंग्लिश से, ठीक है। 65% पास्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। 40% पास, तीनटे जोन सेम बनिए देख। इन एन एग्जामिनेशन इंग्लिश में कितना है दोस्तों? इन एन एग्जामिनेशन इंग्लिश इज 55%। मैथमेटिक्स मैथे কত? 65%। एंड इसे पेन से लिखते हैं, नहीं इससे लिखते हैं। एंड इंग्लिश प्लस मैथ बोथ কত? सो 40%। तो भैया मेरे अगर 40% इसमें है तो ओनली इंग्लिश से কত হবে স্যার?
টোটাল 55% है, যার মধ্যে থেকে 40 চলে গেল স্যার, यानी 40% চলে গেছে, তো বাকি কত থাকবে বন্ধুগণ বলো कितना रहेगा? तो बोलेंगे सर 15%, দুটো ऐड করে 55 जो मैंने पढ़ाया था लॉजिक में, और यहां से अगर हम करें तो सर दोस्तों क्या आएगा, 65 से चला गया, सो दिस विल बी 25% ओनली। पास्ड इन मैथ्स कितना होगा 25, सो व्हाट दे वांट, फेल्ड इन बोथ, वही मांगेगा। पास देखे तो टोटल पास परसेंटेज, so total pass percentage, so how much we are getting, so total pass percentage how much we are getting, 25, 15 plus 25 plus 40%, so this we are getting how much, 80%, यानी total pass कितने हैं 80। तो बंधुगण failed in both कितना होगा, failed in both, failed percentage in both कर लेते हैं, that is equal to 100% minus 80%, so you will get how much, that is equal to 20%। माने कौन आंसर आसबे, तो we will say 20% will be the correct answer, यानी आंसर कितने के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। बढ़ा जाए आगे, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइए दोस्तों, वाह इतना सारा क्वेश्चंस पढ़ा जाए, आ जाओ। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, यानी 60% पास्ड इन इंग्लिश, सही है। 70% पास्ड इन मैथमेटिक्स, सही है। बट 20% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड, फंसा दिया दोस्तों, फांसी दिलो, ऊपर पास पास नीचे फेल। वी कैन नॉट डू द वेन डायग्राम, यानी हम वेन डायग्राम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारा जोन सेम ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखा जाए किरकम करे हमरा जोन सेम करते पारे, हाउ वी कैन डू इट, देख लिया जाए दोस्तों, समझ लिया जाए किस तरीके से हमारा जोन सेम होगा। अब लेट अस सी व्हाट इट इज गिवन, पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन मैथ, बट फेल्ड इन बोथ, तब कैसे बनेगा सवाल। अब हमें बात करनी होगी इंडिविजुअली। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में पास कितने हैं, सो वी विल से सर 60% पास है, ये राइट नाउ पास्ट है। तो अगर मैं आपसे कहूं जिन लोगों ने, यानी इस तरीके से आप समझिए, এইভাবে বুঝতে পারো, যদি আমাদের ক্লাসে 40টা ছেলেরা আছে, यानी अगर 40 लड़के हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बॉयज वो टोटल कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर। और हमारे पास अगर 20 गर्ल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स, अगर गर्ल्स के काउंटिंग से देखा जाए तो वो 20 कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर। एंड व्हेन वी टेक दैट 50 स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लास, यानी अगर वो 50 स्टूडेंट को अगर हम क्लास के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो वो हमारे लिए कितने परसेंट के बराबर होगा, 100%। यानी पर्टिकुलर बॉयज को लेकर बात की जाए तो बॉयज कितने परसेंट है, 100%। पर्टिकुलर गर्ल्स को लेकर बात की जाए तो गर्ल्स कितने परसेंट है, 100%। एंड ओवरऑल কত আছে, যদি পুরো ক্লাস নিয়ে কথা বলা হয়, दैट इज इक्वल टू 100%। सिमिलरली যদি इंग्लिश में जिन लोगों ने যা ছেলেমেয়েরা एग्जाम দিয়েছে যদি 60% পাস হয়, तो कंपेयरिंग टू द इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश নিয়ে কথা বলি, दोज हु फेल्ड इन इंग्लिश কত হবে, दिस बिकम 40%। दोज हु फेल इन इंग्लिश কত হবে, 40%। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं, यदि আমি বলি मैथ से 70% स्टूडेंट पास्ड, यदि मैथ से 70% स्टूडेंट पास्ड হয়, तो বন্ধুগণ এটা বলো percentage of student who failed in math কত হবে, this bar sign is given, that thing that is equal to 30%। ठीक sir। and extra thing it is given here, those who failed in English plus maths both, it is given how much, 20%। now can we do the Venn diagram, क्या हम Venn diagram बना सकते हैं, तो बोलबे है सर इंग्लिश এর फेल परसेंटेज तो পেয়ে গেছি স্যার, ম্যাথস का भी फेल परसेंटेज आ गया है স্যার, इंग्लिश और मैथ দুটোর মধ্যে যে फेल হয়েছে ওটাও তো চলে এসেছে স্যার, এবার তো আপনি Venn diagram बनाते পারেন, क्या बात है। तो चलिए बना लेते हैं। तो Venn diagram किसका होगा, फेल्ड का। सो लेट अस ड्रॉ द फेल्ड Venn diagram, देखा जाए क्या आता है। दिस विल बी कंसीडर्ड एज इंग्लिश, that is equal to 40%। this will be considered as maths, 30%।
and both case English plus maths দুটোর মধ্যেই fail. আসো let us do it. That is equal to 20%. So failed in both how much? 20%. Only in English how much? That is 20%. Only in maths how much? That is equal to 10%. So failed only in English कितना? 20%. Fail only in maths कितना? 10%. Fail in both is 20%. So total failed percentage কি হবে বন্ধুগণ? 20 plus 20 plus 10. So total fail percentage is how much? It is equal to 50%. If those who are failed in both the subject is 50% in one subject or more than that, तो इसका उल्टा क्या होगा? Passed in both. Passed in both. और we can write pass percentage is both. As we know total class का total percentage कितना होता है? 100. So 100 में से अगर 50% माइनस कर दें, so passed in both we will get how much? 50%. ठीक. तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? The percentage of those who failed only in English, so it will be only in English it will be 20%. The percentage of those who failed only in mathematics how much? 10%. Okay, till here it is clear. Percentage of those who failed in both the subject, so it become percentage of those who passed in both subject 50%. Next question what they have asked, if 2500 students were passed in both the subject, क्या बात है? Passed in both the subject, both the subject बोले दिए तो एक बार करा जाए, এইটা कहाँ किया जाए? यहीं पे बना लेते हैं. So this can be written as total pass तो हमरा पे गए 50%. So the value of 50% is 2500. So total student in the school is 100%. So 100% value will be how much? That is equal to 5000. So option number D is 5000. So what we will get? 5000. So here we have got the answer. अब क्या पूछा गया? परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन इंग्लिश. এবার কি इंग्लिश से पास बार করতে পারি? परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स का पास बार निकाल सकते हैं? तो बोलबे हैं सर बार করতে পারি, तो पास तो पे গেছি 50%. If I have got 50% here, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. यहीं पे बना लेते हैं छोटे से. We will do it here only. आइए. So here I am doing it past, क्योंकि हमें तो सिर्फ वही लगेगा वेन डायग्राम. So this is English. So this is English. How much? Passed in English 60%. Passed in English 60%. This is math. Passed in math how much? 70%. So passed in both is how much? 50%. So 50% passed in both, and in English 60%. So passed only in English how much? That is equal to 10%. Passed only in mathematics how much? That is equal to 20%. So we have got the answer. So passed only in English will be how much? That is equal to 10%. And passed only in mathematics that is equal to 20%. कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं. खूब ভালো অঙ্কটা ছিল, कहीं कोई दिक्कत में समझने में दिक्कत नहीं. सेम जोन ছাড়া আমরা অন্য দিয়ে কথা বলেছি. इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. कैन बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে. कैन बी मूव. आई लेट अस सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ा जाए. Out of a total of 85 children playing badminton or table tennis or both, মানে ব্যাডমিন্টন একটা হলো, টেবল টেনিস দুটো হলো, এন্ড বোথ মানে দুটো স্পোর্টস নিয়ে কথা হচ্ছে, ব্যাডমিন্টন এন্ড টেবল টেনিস. টোটাল নাম্বার অফ গার্লস ইন দ্য গ্রুপ ইজ 70% অফ দ্য টোটাল নাম্বার অফ বয়েজ ইন দ্য গ্রুপ. মানে টোটাল নাম্বার অফ গার্লস যারা আছেন ওইটা 70% আছে টোটাল নাম্বার অফ বয়েজের. সব থেকে আগে এটাই বার করি না. 85. Out of 85 we are talking about boys and we are talking about girls, and they have said total number of girls is 70% of the boys. So girls কার উপরে ডিপেন্ড করছে? বয়েজ এর উপরে, that is 70% of the boys. So if we will take boys as 100, तখন गर्ल्स कत हो जाए? यानी अगर बॉयज को अगर 100 लिया जाए तो गर्ल्स कितने के बराबर होंगे? तो हम कहेंगे सर 70 के बराबर होंगे. सो द रेशियो विच वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज हाउ मच? 10:7.
सो बॉयज इज 10 यूनिट, गर्ल्स इज 7 यूनिट, तो टोटल जोड़कर कितना हुआ 10 प्लस 7 17. सो द वैल्यू ऑफ 17 यूनिट इज हाउ मच 85. सो द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट विल बी 85 डिवाइडेड बाय 17. सो 17 দিয়ে কেটে দিলে কত হবে 5. সো what we are getting 5 unit. So the value of 1 unit is 5. So the total number of boys is 50. The total number of girls is 35. यानी टोटल बॉयज कितने हो गए 50 हो गए और टोटल गर्ल्स कितनी हो गई 35 हो गई. अब दो स्पोर्ट्स है. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज लेट अस टेक बीबी बैडमिंटन and take this as table tennis. Take this as table tennis and let us draw the figure. So let us see. We have find, तो हमें गर्ल्स भी मिल गया बॉयज भी मिल गया. गर्ल्स को तो बॉयज को तो गर्ल्स 35, बॉयज को तो 50. Now what has been said? Let us see. The number of boys playing only आ गया ना. देखो যে বলছিলাম চলে এসেছে তো only badminton means this portion. The number of boys playing only badminton माने boys की बात हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं. How much? 50% of the number of boys. तो 50% of the number of boys का मतलब कितना होगा दोस्तों? So 50 into 50 by 100. So this become 25. So the boys who are playing only badminton is কত 25. कहीं कोई दिक्कत नहीं सर. ओनली बोला হয়েছে, क्या बोला गया है ओनली. तो ओनली कितना होगा 50 का 50%. सो द बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 25%. क्या बात है सर. एंड द नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन, यानी देखो खेल शब्दों का. द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन नहीं बोला गया. क्या बोला गया? प्लेइंग बैडमिंटन. दैट मीन्स दिस होल. So the boys who are playing badminton is 60% of the total number of boys. तो यहां से कितना मिला दोस्तों? So this become 30. अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर 30 लड़के जो हैं যদি 30টা ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলছে যার মধ্যে থেকে 25টা শুধু ব্যাডমিন্টন খেলছে, তো বাকিরা কোথায় যাবে স্যার? এই পাঁচটে যেটা হবে ওরা হবে যে ব্যাডমিন্টন আর টেবিল টেনিস দুটোই খেলছে. তো স্যার বাকি কত থাকলো? 50 এর মধ্যে 30 হয়ে গেল. তো স্যার 20টা ও ছেলেটা হবে जिनारा শুধু আর শুধু टेबल टेनिस खेलते, यानी वो स्टूडेंट होंगे, वो बॉयज होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहे हैं? टेबल टेनिस खेल रहे हैं. यहां तक में क्लियर है. अब हम आते हैं आगे एंड लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी. Now, the number of children playing only, देखो भैया खेला only table tennis is 40% of the total number of children. चलो बंधुगण এখানে বার করি. So total children कितना होगा? So total children কত হবে? Sir 40% of 85. That is equal to, ये कट गया बंधु 2 और 5 और ये 5 से कट गया 17. So this become 34. Sir 34 children এমনি আছে जिनारा শুধু আর শুধু টেবিল টেনিস খেলছেন যার মধ্যে 20টা তো ছেলে হয়েই গেল, তো বাকি কত থাকবে? স্যার 14 girls are there, those who are playing only table tennis. sir ওরা খেলছে. ঠিক, आगे बढ़ते हैं. And the total number of children playing टेबल टेनिस एंड बोथ. क्या बात है, यानी यहां पर हमें और क्या दे दिया गया है? बीबी प्लस टीटी. टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने वालों का नंबर्स कितना है? 12 आउट ऑफ विच 7 अगर यार 5 अगर हमारे बॉयज हैं मेरा कत হবে 17. सो आउट ऑफ 35 14 प्लस 7 21 हो गया. सो द गर्ल्स हु आर प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 35 minus 21 गर्ल्स, মানে স্যার 14টা गर्ल्स হবে जिनारा শুধু और শুধু কি খেলছেন? बैडमिंटन. यानी सर 14 ऐसे स्टूडेंट होंगे यानी गर्ल्स में जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलती है? बैडमिंटन. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन
जो वेन डायग्राम के जो मैंने ओनली वाला केस का যেটা আমরা ओनली কেসটা বলেছিলাম that comes here। क्या बात है सर, बहुत मजा आ रहा है, एक একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝতে পারছো, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो कैन बी मूव टू द नेक्स्ट वन। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए। इन ए स्कूल द स्टूडेंट्स वर ऑफर्ड हिंदी इंग्लिश और बोथ। If 70% of the student had offered Hindi and 50% of the student has taken English, then find the percentage of those who has taken both the subject। ठीक है, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, both the subject। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे, बोथ केस कहेंगे। बोथ केस में क्या होता है दोस्तों, बोथ केस में मैं लिखा देता हूं यहाँ पे। सो इन बोथ केस व्हाट वी विल गेट, इन बोथ केस व्हाट वी विल गेट, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा आएगा वो किस केस में जाएगा, बोथ केस में जाएगा। किस तरीके से, लेट अस सी। एज वी नो, जो हिंदी ले रहे हैं या जो स्टूडेंट इंग्लिश ले रहे हैं या जो दोनों ले रहे हैं, सभी के सभी तो सेम कैंपस में सेम स्कूल में होंगे या सेम कॉलेज में होंगे। और जितने भी स्टूडेंट होंगे, वेदर इट इज 5000 10,000 व्हाटएवर, जिन्होंने इंग्लिश लिया है या हिंदी लिया है या बोथ लिया है, टोटल मिलाकर 100% होना चाहिए। बट हियर व्हाट वी आर गेटिंग, हिंदी प्लस इंग्लिश परसेंटेज, व्हाट वी आर गेटिंग। Sir, in Hindi 70% has taken Hindi person, sir, plus in English 50% we have taken, so total is equal to 120%। यानी 120% ऐसे हैं जो कि टोटल मिला के कंपैरिजन में हो रहा है, यानी कैंपस में हो रहा है। बट एज वी नो, चाहे वो 10,000 और 5,000 टोटल कैंपस कॉलेज के स्टूडेंट का टोटल रेशियो कितना होना चाहिए, या रेशियो नहीं परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो वी विल से सर 100% होना चाहिए सर। इसका मतलब यह है दोस्तों, एक्स्ट्रा व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स्ट्रा वी आर गेटिंग 20%। तो वी कैन से सर 20% वो केस है जो दोनों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा 20। याद रखिएगा कैसे, यह भी समझा देता हूं किस तरीके से। देखो, इफ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश हिंदी परसेंटेज, तो दो बातें होंगी। एक होगी दोज हु हैज टेकन ओनली हिंदी, और एक होगा वो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों इन ईच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश परसेंट। सो दिस बिकम इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, and this become हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आप प्रैक्टिकली जानते हैं आना क्या क्या चाहिए, एज यू हैव डन दिस 3 थिंग्स शुड कम, यानी आना क्या क्या चाहिए दोस्तों, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश एंड बोथ, यही तो आना चाहिए वेन डायग्राम में। बट वी आर गेटिंग वन एक्स्ट्रा, यानी जब हम हिंदी और इंग्लिश को ऐड कर रहे हैं, सो दिस एक्स्ट्रा विल बी कंसीडर्ड एज बोथ केस। तो ये कंसीडर्ड क्या होता है, बोथ केस में। आप सिंपली याद रख सकते हैं, जितना परसेंटेज चाहिए अगर उससे ज्यादा होता है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज बोथ केस। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोला है। नाउ इन ए स्कूल 55% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 35% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 18% स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द गेम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजे से समझेंगे। एंड वी विल यूज 2 मेथड, वन बुकिश लैंग्वेज आल्सो एंड वन प्रैक्टिकल। 55% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 35% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही क्रिकेट ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो पूछा गया कत स्टूडेंट আছে जिनारा দুটোই गेम खेलें, परसेंटेज। नाउ दोस्तों आप याद करिए कॉलेज टाइमটা, कॉलेज कोनो स्पोर्ट्स से मैराथन हो तो या फिर क्रिकेट होता तो पूरे के पूरे क्लास के लोग खेलने नहीं आते थे, ओनली 11 प्लेयर्स। तो जो 11 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी हम लोग क्या करते थे, चेहरे हमारा क्लास जीतबे, हमारा क्लास जीतबे, हमरा विजयी हो, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। बट अगर मैं क्लास के पूरे क्राउड की बात करूं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने आप पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन पूरे क्राउड को मिलाकर कितने परसेंट के बराबर होगी, 100% के बराबर होगी, हाँ या ना। क्योंकि सर जो पार्टिसिपेट कर रहा है सर जिनारा पार्टिसिपेट করছেন না দুটোকে যদি ম্যাচ করিয়ে দিত স্যার পুরো স্কুলেরই তো স্টুডেন্ট হলো, আর পুরো স্কুলের স্টুডেंट কত परसेंट হচ্ছে বন্ধুগণ, 100%, व्हाटएवर विल बी द स्ट्रेंथ। तो अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, नाउ आई एम गोइंग विद प्रैक्टिकल मेथड, आई एम गोइंग विद प्रैक्टिकल मेथड। अब अगर मैं इन तीनों के परसेंटेज को जोड़ दूं, सो इट विल बी 55% प्लस 35%
plus how much 18%. So we are getting 108%. अरे सर एक्स्ट्रा चले एसছে তো 100 হওয়া উচিত, তো জন্দু যদি 100% হওয়া উচিত এক্সট্রা পাচ্ছি কত 8%, so 8% will be considered as what, क्या कंसीडर्ड होगा, तो 8% will be considered as both case, क्या कंसीडर्ड चलेंगे लेकर, both case लेकर, यानी ये किसका कंसीडर्ड होगा, both case, यानी both case कहने का मतलब those student those who are playing cricket and football both। ठीक सर एक बार बोइया लैंग्वेज तो एकटू बोलो दिन सर, बोई का भी लैंग्वेज बताइए, यानी किताबी लैंग्वेज। आओ नाउ as we know, those who are playing only cricket plus those who are playing only football plus those who are playing cricket plus football, टोटल मिलिए कत हवा उचित 100% टोटल स्कूल का स्ट्रेंथ है, जिसमें से 18% रा किछु खेलेई ना, माने यदि 100% থেকে 18 আর those who are playing nothing, तो इसका मतलब यह है कि 82% वो हैं जो either playing only cricket or football or both। ठीक, now if I will add cricket plus football percentage which is given, if I will add cricket plus football percentage which is given, this become what, 55% plus 35%, so this become 90%। अरे सर 82 হওয়া উচিত তো 90 চলে এসেছে, মানে 8 যেটা আছে एक्स्ट्रा, एंड दिस एक्स्ट्रा विल बी व्हिच केस, तो वी विल से बोथ केस, यानी ये एक्स्ट्रा कौन सा केस होगा, तो वी विल से बोथ केस, सो आवर आंसर विल बी बी। क्या बात है, प्रैक्टिकली भी हमने समझा और थ्योरेटिकली भी हमने समझा, কারোর কোনো অসুবিধা নেই, বুঝতে পারছো, একদম ক্লিয়ার।